Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in Agarwal Commerce Net classes. Today we will start the next topic of organizational behavior, which is called leadership, right? Leadership is an important topic of organizational behavior, and it frequently comes to your examination, so you have to prepare it very well. So first we will have an introduction. Leadership is the ability to develop a vision that motivates others to move with a passion towards a common goal. Yes, it is true. Okay, what is the motive of leadership? Leadership is a ability in a person which develops a vision that motivates others to move with a passion towards a common goal. That means leader is a person who is the head of the team, who not only himself also motivates the other member of team to achieve the common goal. So leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. It is also very true, students, because it is a process. Leadership is a long and very important process for the organization, in which a person means here the leader, the head of the team, influences others because he is the role model of the other member of a team who accomplish an objective. जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, जो कॉमन गोल है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ है, और उसको डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन देता है कि कैसे वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे इन अ वे दैट मेक्स इट मोर कोहेसिव एंड कोहेरेंट, ताकि वो सब कोऑर्डिनेटेड, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें, और सभी टीम मेंबर्स एक ही दिशा में अपनी फोर्स अप्लाई करें, राइट? नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप. सो यहाँ पर दो रिनाउंड ऑथर्स ने अपनी डेफिनेशन दी है, एम चेमर्स ने और एलन केथ ने. लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of common task. जैसा हम देख सकते हैं कि लीडरशिप में लीडर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, who actually proceeds the whole process, who actually make other members of the team motivated to fulfill the common goal, to achieve the common target of the organization. Then Mr. Allen कहते हैं leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen. Leadership is not only to achieve the common goal in an ordinary way. Actually, it is a very magical term and magical process in the organization. If it happens in the right direction, then it can contribute many more. It can contribute beyond the expectation. If all the people are working in a right manner under the leadership of a person, then they can make something very extraordinary to be happen for the organization, right? नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और इसका क्या मीनिंग है. एक्चुअली लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर विलिंगनेस टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना काम विलफुली कर रहे हो या आप बहुत बेमन से आप अपने काम को, अपने जॉब को, अपने जो भी आपका टारगेट असाइनमेंट आपको मिला है बॉस से, वो आप बहुत बेमन से उसको अकम्प्लिश कर रहे हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप कोई काम बहुत मन से और इंथ्यूजियास्टिकली करोगे तो रिजल्ट्स कहीं और ही पहुंचेंगे, आपके रिजल्ट्स बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन आपको मिलेंगे. सो लीडरशिप ऑल्सो प्लेज दैट काइंड ऑफ रोल विच इंक्रीजेज द विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, राइट बच्चों? Then it is also a process of guiding, directing and motivating employees to develop enthusiasm towards their work and channelize their efforts into the required direction. Yes, it is also very true, because leadership is a process which guide the other people. Leadership is not only about oneself, it is not about only the leader. Actually, it is all about all the members of the organization, all the members of the team, which motivates, which works इन फेवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और जब इस प्रोसेस को सही मैनर से अप्लाई किया जाता है तो ये प्रोसेस दूसरे एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है और उनके काम को और अच्छी तरह से चैनलाइज करके जो मोटिव है, जो मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने में हेल्प करता है.
देन नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ लीडरशिप, कि लीडरशिप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उसके गुण होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं. हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, राइट. Now we will discuss them one by one. It's a continuous process and not a one shot activity. कि आपने एक दिन आप बड़े जोश से ऑफिस में आए और आपने कहा कि भाई आज तो मैं ऐसे परफॉर्म करूँगा या करूँगी कि ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ही लेवल पे पहुँचेगा और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे विल हैव अ लेसन फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन. नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस and a very long going process. When you start working upon that, you have to make the strategy, you have to set your goals, and then you have to motivate your team members, you have to allocate the work accordingly as per their strength and weaknesses. Then the process begin and you will able to achieve the targets, right. So it is a continuous process. Influencing the behavior is a core competent, it's a core component कि आप अपने बिहेवियर से अपने टीम मेंबर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हो. जैसे कहा जाता है अक्सर कि आप अगर किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप खुद ही ऐसा बिहेव करना शुरू कर दें, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ अ रोल मॉडल, इज़ एक्चुअली द एग्जाम्पल फॉर अदर्स. आप जैसा बिहेव करोगे, अगर लीडर एक जगह बैठ गया और बड़े बॉसिज्म के साथ दूसरों को टास्क असाइन कर दिए एंड आप उसको बॉसिज्म के साथ बड़े डिक्टेटरशिप से आप काम ले रहे हो, सो इट कैन नॉट बी वर्क फॉर लॉन्ग. आप एक दो दिन काम करा सकते हो, उसके बाद आपको लगेगा कि अरे ऐसे नहीं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नो यूज़ ऑफ फोर्स और कोशन इज़ देयर. येस, आप ज़बरदस्ती आप अपने टीम मेंबर से काम नहीं करा सकते कि आपने बहुत ही अपने डिक्टेटरशिप से, आपने बहुत अपने स्ट्रेंथ से, अपनी पोजीशन को अप्लाई करते हुए, अपनी पावर को अप्लाई करते हुए केवल लोगों से काम कराने का सोचा और आपने कहा कि भाई काम हो जाएगा. सो ये लॉन्ग गोइंग प्रोसेस नहीं है, आप इसमें ज़्यादा देर तक लोगों से काम नहीं ले सकते. इट इज़ एन इनहेरेंट क्वालिटी in a person, or when you are a good leader, when you are a good motivator, तो ये आगे भी इस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है. इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी व्हेन द हेड ऑफ अ पर्सन बिहेव इन अ वेरी नाइस मैनर एंड ही कोऑर्डिनेट विद द टीम मेंबर्स इन अ वेरी गुड वे. सो जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में भी एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम होगा. चैनलाइजिंग और डायरेक्टिंग द बिहेवियर एंड द थॉट प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे चैनलाइजिंग ऑफ बिहेवियर की बात की गई है, डायरेक्टिंग की बात करी गई है कि आप अपने काम को चैनलाइज कैसे करते हैं, अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. इट इज़ अ वेरी long going or impactful process. Leadership is exercised under a particular situation and not every time. आपका जो लीडरशिप का पैटर्न है, आपका जो काम करने का तरीका है और लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का तरीका है, उसके डिफरेंट आपको फेसेस, डिफरेंट मोड्स अप्लाई करने पड़ेंगे एज पर द सिचुएशन. बिकॉज एवरी टाइम इफ़ यू आर ओनली स्वीट विद द पीपल, इफ ओनली यू आर जस्ट पैम्परिंग द टीम मेंबर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द वर्क टू अचीव द टारगेट इन एवरी टाइम. सो if there is a demand or need to take the work or to just make the work completed in a pampered way, so you have to apply that pattern. Or maybe sometime you have to be little strict, you have to be time bound and you have to give the deadlines to the people. So it is also very important. So it depends upon the situation कि आप कैसे आप इस वक्त situation की क्या demand है, आप वैसे आप काम करवाएंगे. Focus is on utilizing the capacity to the fullest. ये तो मैनेजमेंट का भी एक प्रिंसिपल गोल्डन रूल है, आप सबको पता होगा कि मैनेजमेंट मीन्स टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, राइट. सो यहाँ पर भी उसी एस्पेक्ट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है कि आपका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कैसे आप अपने टीम मेंबर्स की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करते हो पॉजिटिवली.
ना कि आप उनके वीकनेसेस को हाईलाइट करते हुए उनको डीमोटिवेट कर दें. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे पॉजिटिविटी को बनाए रखेंगे. प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स इज़ अ प्राइम रिक्वायरमेंट. आप जो फॉलोअर्स हैं, जो उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जो टीम मेंबर्स हैं उनका जो मोटिवेटिंग सोर्स है, दैट हैज़ टू बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट. दैट मीन्स कि जो हेड है, जो लीडर है, उसको हमेशा अपने मेंबर्स के साथ अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है टू increase the morale of the members or employees of the organization. सो इसी के साथ हमारा बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म होता है. और हम लीडरशिप को 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा. नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें वी विल डिस्कस द लीडरशिप स्टाइल्स, कि क्या क्या लीडरशिप स्टाइल होते हैं. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन. और लास्ट लेक्चर में लीडरशिप के हम डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप की थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं. सो इस तरह से ये लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश होता है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं. और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको अगर इस लेक्चर से कुछ भी सीखने मिला है, समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और नॉलेज गेन कर पाएँ. और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल पाए. राइट. सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम. गुड बाय, टेक केयर.